Hello, I am Nilay Jani, welcoming you at Shillong Classes and Physics Zone. Today we are going to discuss about chapter number 7, that is basically on the rigidity or rigid material and its rotational motion. Okay, so first of all, what is rigid body? From that we are starting. Okay, rigid body is one kind of material where the molecules are not going to change their places while they are moving from one place to another place. So there are two kind of motions. First of all, rotational motion, and second one, that is pure translational motion. Okay, there are two kinds of motion. First one rotational motion and second one is pure translational motion. Before starting both of them, we have to know about rigid body. We have to know about rigid body. What is rigid body? First of all, suppose we have any body which is having 1, 2, 3, 4 and 5 particles right over here. Okay, while those particles are moving due to the motion of body, at that time the distance between the particles are not going to change in any condition. So that is why that is known as the rigid body. Rigid body किसको कहा जाएगा? While the particles are not going to change their relative positions, एक दूसरे के relative positions change नहीं करेंगी. मतलब कि relative positions of particles are not going to change. And second one, the velocity direction of all the particles are remaining same, that means in one direction only. Okay, now no perfect body, no perfect rigid body is there. But nearly equal to perfect rigid body आपको मिल जाएंगी. There are two kinds of. First one, that is diamond, and second one, that is, can anyone say? Carborundum. Carborundum. So these are the basic phenomena of rigid body. Any body while is in motion, at that time the motion is basically divided into two parts. First one, that is rotational motion, and second one, that is pure translational motion. So प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रहा है एट एनी स्लोप, ठीक है, अगर स्लोप के ऊपर मूव कर रहा है तो उसका पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल और कोई भी पार्टिकल उसकी मोशन की डायरेक्शन में ही मूव करेगा. सो दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. We can say that is linear motion. That is linear motion. Is that clear? Now second one, that is rotational motion. अगर यही पोर्शन के ऊपर, यही स्लोप के ऊपर अगर सर्कुलर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा while it is rotating. ओके, तो जब वो रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो एट दैट टाइम वहां पे मैं दो पार्टिकल ले रहा हूं. फर्स्ट वन इज एट द P1 एंड सेकेंड वन इज एट द P2. समझ में आ रहा है? तो P1 का रोटेशन जो है वो आउटर पार्ट में हुआ
और P2 का जो रोटेशन है वो कौन से पाथ में हुआ, इनर पाथ में हुआ, जहां पे P2 के लिए रेडियस R2 होगी और P1 के लिए रेडियस R1 होगी. बट P1 and P2 has whichever the path, but its center is at always on this path. जहां पे आपकी पूरी बॉडी का सेंटर है वहां पे रहेगा. तो बॉडी which is rotating in such a way that each particle's path has same center, then body is doing rotational motion. Which motion? Rotational motion. समझ में आया? If each particle is rotating on some path, at that time those all path has must be the same center. At that time that body is considered as rotational motion. Is that clear? Now rotational motion अगर हम पढ़ रहे हैं तो we have to learn about rotational axis. Okay, rotational axis क्या है? Rotational axis is an imaginary axis with respect to which all the particles are rotating. Is that clear? Rotational axis क्या है? An imaginary axis at which all the particles are rotating. मतलब सभी पार्टिकल जो रोटेट कर रहे हैं वो एक पाथ के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, जिसका सेंटर जो होगा उससे जो एक्सिस बनेगी दैट इज रोटेशनल एक्सिस. समझ में आया? तो सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन रोटेशन एक्सिस. ओके, सपोज हमारे पास यहां पे एक्स एक्सिस है और यहां पे जेड एक्सिस है और यहां पे वाई एक्सिस है. ठीक है, तीन एक्सिस हमने ले लिया जहां पे x and y both are on the horizontal surface and any particle any body is right over here. कोई बॉडी को मैंने कहां ले लिया है? यहां पे ले लिया है, जहां पे फर्स्ट वन P1 पार्टिकल है और सेकेंडली कौन सा पार्टिकल है? P2. तो P1 जो है यहां पे रोटेट करेगा, P1 यहां पे रोटेट करेगा और P2 यहां पे रोटेट करेगा, जहां पे दोनों की रेडियस जो होंगी वो रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2. इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो कोई भी पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है उसका सेंटर, पाथ का सेंटर ऑन द रोटेशन एक्सिस, तो दिस विल बिकम एज रोटेशन एक्सिस, an imaginary axis on which the center of all the particles path मिलेगा, that is rotation axis. Is that clear? After than that, हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि पार्टिकल जो है वो सीधे ही घूमेगा. सपोज वी आर टेकिंग अ टॉप. ठीक है, टॉप को घुमाते हैं तो जब वो बंद होने आएगा तो पहले ऐसे स्ट्रेट घूम रहा होगा ऑन इट्स रोटेशन एक्सिस, लेकिन जब बंद होने आएगा तो वो ऐसे घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा और साथ में दोनों तरीके से घूमेगा. मतलब उसकी ओन एक्सिस के ऊपर तो घूम ही रहा है, भले ही वो टेढ़ा है, लेकिन बीच में फिर से एक एक्सिस ऐसी मिलती है जिसके रिस्पेक्ट में वो घूम रहा है. दैट इज प्रिसेशन एक्सिस. दैट इज प्रिसेशन एक्सिस. सो सेकेंड वन दैट इज प्रिसेशन एक्सिस. मतलब कि हमारे पास यहां पे एक टॉय है जिसको हमने बोल लिया टॉप. टॉप जो है वो घूम रहा है, तो ये एक्सिस के ऊपर वो घूमेगा, तो दिस इज रोटेशन एक्सिस, राइट. एंड विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस वो तो घूम ही रहा है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है, सपोज कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं दिस वन, तो इसका जो पार्टिकल है वो कहां पे पहुंचेगा? यहां तक पहुंचेगा और ऐसे भी घूमेगा. समझ में आया कि नहीं आया ना? क्लियर हुआ? ऐसे भी घूमेगा. तो ये जो ऐसे घूम रहा है, मतलब कि अगर मैं सेंटर से लेना चाहूं तो भी ले सकता हूं. फॉर सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग दिस वन एज P1, दिस वन एज P2.
तो P1 मुझे वही डिस्टेंस पे यहां पे मिलेगा और P2 मुझे वही डिस्टेंस पे यहां पे मिलेगा। P1 P2 को ज्वाइन करता हूं, P1 P2 को ज्वाइन करता हूं तो मुझे मिल जाएगा P1 पॉइंट, दिस इज P2 पॉइंट एट विच इट इज टेकिंग दी रोटेशन। ये रोटेशनल पाथ हुआ किसका? P1 का। किसका? P1 का। और वैसे ही रोटेशन पाथ हमें मिलेगा कहां पे? P2 पे, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? ये टॉप जो है वो यहां पे रोटेशन कर रहा है, साथ में ये एक्सिस के साथ भी रोटेशन ले रहा है। सो दिस एक्सिस इज प्रिसेशन एक्सिस। प्रिसेशन का मतलब ये होता है कि दूसरी कोई ऐसी एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में रोटेशन एक्सिस खुद घूम रही है। यहां पे क्या हो रहा है? रोटेशन एक्सिस जो है वो खुद घूम रही है, मतलब कि पॉइंट्स ऑफ रोटेशन एक्सिस आर रोटेटिंग ऑन एनी रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी इमेजिनरी एक्सिस। दैट इमेजिनरी एक्सिस इज व्हाट? प्रिसेशन एक्सिस। इज दैट क्लियर और नॉट? Now, next topic is mixed motion of rigid body and pure translation with rotational motion. Okay. तो इसके अंदर क्या होगा कि if we have any body जिसको मैं ऐसे सीधे फेंक रहा हूं, जिसको मैं ऐसे कैसे फेंक रहा हूं? सीधे फेंक रहा हूं, मतलब कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है। कैसे मोशन में जा रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जा रही है। ये थोड़ा थियरी बेस है, इसीलिए जल्दी खत्म कर दिया। ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस। जहां पे ऑब्जेक्ट को हमने जब भेजा तो वो कुछ ऐसे दिख रहा था, यहां पे पहुंचा तो भी वो कैसे दिख रहा था? ऐसे दिख रहा था। यहां पे पहुंचा तो भी वो कैसे दिख रहा था? ऐसे दिख रहा था। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इसकी ओरिजिनल एक्स एक्सिस ये है, इसकी ओरिजिनल वाई एक्सिस ये है। ऑब्जेक्ट की दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली टू डिफाइन इट्स प्लेस एंड डायरेक्शन। यहां पे भी ऑब्जेक्ट वही डायरेक्शन में है, एक्स वाई। यहां पे भी x, यहां पे भी y। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। बट वी कैन सी हियर दैट द वेलोसिटी इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कहां जा रही है? v1। यहां पे वेलोसिटी जो है वो यही डायरेक्शन में है, v2। यहां पे वेलोसिटी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? v3। इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Even it is moving on the projectile path, it is having different velocity, even though it is not changing its own position. Own position, उसकी खुद की पोजीशन एक्सिस जो है वो चेंज नहीं हो रही है। कहीं पे दिख रही है? नहीं। तो here which are the conclusions? प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पे हो रही है, राइट? तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पार्ट ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, राइट? तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इज देयर। रोटेशन नहीं हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी डायरेक्शंस आर चेंजिंग। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन प्योर ट्रांसलेशनल हो सकती है, पहली चीज। ठीक है, तो दिस इज केस नंबर 1। नाउ इज दैट क्लियर और नॉट? एनी डाउट? चलो अभी वही वाला पोर्शन लेते हैं, बट अब मैं कैसे फेंक रहा हूं। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास दिस इज अ फ्रंट अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां से मैंने पाइवोट किया है, मतलब बांधा हुआ है, और ये वाले पाथ के ऊपर जा रहा है। तो पहले यहां पे था,
लेकिन जैसे जैसे जाएगा उसको मैं घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो यहां पे पहुंचेगा तो कैसे, नीचे घुमा हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि वो प्रोजेक्टाइल पाथ के ऊपर तो जा ही रहा है, लेकिन वो ऐसे रोटेट भी हो रहा है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ मोशंस। फर्स्ट वन इज, कौन सी मोशंस रही यहां पे? फर्स्ट वन इज प्योर ट्रांसलेशनल, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट यहां से दिखाया, और दूसरा कौन सा? रोटेशन, क्योंकि वो खुद भी रोटेट कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मोशन में डिस्क्राइब करना चाहूंगा ऐसे कि पहला पोर्शन जिसकी एक्स एक्सिस यहां पर है, वाई एक्सिस यहां पर है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो ये डायरेक्शन में, राइट। बाद में भाई थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया तो कुछ ऐसा हो गया। तो एक्स वाली एक्सिस जो ऐसे थी, टेढ़ा होने की वजह से कहां चली गई? नीचे। और ये वाली एक्सिस, कोई ऐसा ना सोचे कि एक्स एक्सिस क्यों नीचे लिया, इट्स ओन एक्सिस, मैंने खुद की एक्सिस की बात की है, ठीक है, मैंने रिस्पेक्टिव एक्सिस की बात नहीं की है, सिर्फ उसकी खुद की एक्सिस, ठीक है। तो उसकी, वो भी इसीलिए क्योंकि उसकी पोजीशन दिखानी थी, किसी और की नहीं। तो एक्स नीचे चला गया, वाई यहां पर है, और वेलोसिटी कुछ ऐसे हो रही है, वेलोसिटी कुछ ऐसे हो रही है। जब वो यहां पर पहुंचा तो यहां पे कुछ ऐसा टेढ़ा है, तो यहां पे एक्स रहेगा, यहां पे उसका वाई रहेगा, और वाई की डायरेक्शन में उसकी क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। मतलब कि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, हाँ या ना, और ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ के ऊपर भी जा रहा है, तो यहां पे प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। वो क्या हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन। पहला खत्म हुआ। और दूसरी चीज कि इट इज रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग, सो इट इज हैविंग रोटेशनल मोशन। कैसी मोशन हो गई? रोटेशनल मोशन, हाँ या ना बोल? मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप की हो सकती है। अब दो केस तो हो गए, दिस इज अवर केस नंबर 2। कौन सा हुआ? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। यहां पे केस नंबर 1 के अंदर सिर्फ क्या था? ट्रांसलेशनल, ठीक है ना, प्योर ट्रांसलेशनल, जिसको मैंने बोला था, क्या बोला था? प्योर ट्रांसलेशनल। तो प्योर रोटेशनल भी हो सकता है ना। तो प्योर रोटेशनल के लिए क्या करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पे पाइवोट कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट इज पाइवोटेड, ठीक है, और उसको दो एक्सिस में बांट दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और घुमाया यहां से। समझ में आया? सो इट इज हैविंग व्हाट? रोटेशन। तो ये वाले केस के अंदर रोटेशन मिल गया, तो केस नंबर 3 के अंदर हमें क्या मिल सकता है? प्योर रोटेशनल मोशन, हाँ या ना बोल? समझ में आ रहा है ना? बोरिंग नहीं हो रहा है ना? प्योर रोटेशनल मोशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव 3 काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। कितने स्टेटमेंट? 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि एनी बॉडी कैन डू प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एनी बॉडी कैन डू प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरी कैसी हो सकती है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, और इट कैन बी रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन while body is not pivoted at point. This is condition. मैंने यहां पे इसको पाइवोट किया नहीं किया, एट अ सिंगल पॉइंट पाइवोट नहीं किया, पाइवोटेड पॉइंट इज ऑल्सो मूविंग। तो एक फिक्स पॉइंट पे पाइवोट नहीं किया गया है। एंड if body
is pivoted at single point, then third statement, body is having which one? Pure rotational motion. Is that clear or not? Any doubt there? Clear? Now center of mass comes into the action. Okay, the main reason of today's lecture, that is center of mass. What is center of mass? A center of mass is a center where the mass of whole body we can represent. वो ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास रिप्रेजेंट हो सकता है, दैट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास. ओके, सबसे पहले अब सेंटर ऑफ मास के लिए बहुत सारी थियरीज है. सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट बॉडीज. लेकिन मैं कितनी बॉडीज ले रहा हूं अभी? 2 बॉडीज ले रहा हूं. कितनी बॉडीज ले रहा हूं? 2 बॉडीज ले रहा हूं. सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक थियरी. वी हैव दिस इज x axis, this is y axis, this is our origin, and we are supposing that we are having the 2 masses m1 and second one is what? m2. Respectively, those are at distance x1 and second one is at x2. Then center of mass is known as r vector, that is capital R vector. कहीं लोग इसके बीच में नीचे COM भी लिखते हैं. तो R that means पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो यहां पे सिर्फ x सेंटर ऑफ मास में मिलेगा, क्योंकि बोथ द पार्टिकल आर ऑन x एक्सिस. बोथ द पार्टिकल आर ऑन x एक्सिस. यू कैन increase the fan, it's okay if you want to. Both the particle are on x axis, so that is why its y axis of center of mass is equal to 0 directly. Okay, अब ये दोनों masses x axis के ऊपर है, उसके अंदर बीच वाला जो कोई पॉइंट होगा, ठीक है, बीच वाला कोई पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग एट द मिडल, लेकिन बीच में से कोई एक पॉइंट, मतलब यहां से लेके यहां तक बीच में से कोई एक पॉइंट पे द मास ऑफ 2 बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज अवर सेंटर ऑफ मास. सो सपोज दिस इज अवर सेंटर ऑफ मास, और उसका जो डिस्टेंस यहां पे यहां मिलेगा आपको, दैट इज RCOM. क्लियर? लेकिन दैट इज ड्यू टू ओनली विच x सेंटर ऑफ मास. तो यहां पे लिखेंगे वेयर x सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट इक्वेशन that actually comes from the weight mean. कहां से आया हुआ है वो? weight mean से आया हुआ है. अब weight mean जो है वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इक्वेशन को याद रखेंगे डायरेक्टली. तो XCOM दैट इज इक्वल टू m1 उसकी पोजीशन प्लस सेकेंड मास उसकी पोजीशन डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल दी masses. तो दिस इज इट्स x सेंटर ऑफ मास. इज दैट क्लियर? बट ये तो कहां पे हो गए? केस नंबर 1, while m1 and m2 are on x axis at x1 and x2 distance with respect to origin. समझ में आ रहा है ना?
बट केस नंबर 2 के अंदर हम जा रहे हैं जहां पे मैं लिख रहा हूं कि m1 and m2 are two masses in two dimension is having r1 and r2 as position vectors. हाँ है ना? तो अगर हम बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई एक्सिस के बारे में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज अवर m1, दिस इज अवर m2, इट इज हैविंग r1 वेक्टर, दिस इज हैविंग r2 वेक्टर, राइट? तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? हमारा सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? अवर सेंटर ऑफ मास इज ऑन ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस. कहां पे मिलेगा? लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मासेस. सपोज कर लीजिए कि वो सेंटर ऑफ मास हमारा कहां मिल रहा है? यहां पे सेंटर ऑफ मास, तो फिर उसका वेक्टर क्या हो जाएगा? आर कॉम. क्या हो जाएगा? आर कॉम. इज दैट क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? ओके, सो दैट इज वाई अब यहां पे हम लिखेंगे कि आर कॉम जो हमारा वेक्टर मिल रहा है, इट इज हैविंग एक्स कॉम, मतलब कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है, क्योंकि वो 2 डायमेंशन के अंदर है. सीधी सी बात है. सो दैट इज वाई वेर एक्स कॉम दैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y com that is equal to m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2. This is the simple formula. ठीक है. अब आ रहा है ट्विस्ट. जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. सिस्टम को उठा के ओरिजिन पे डाल दो. कहां पे? ओरिजिन पे. और ऐसे डालो कि सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन आ जाए. कहां पे आ जाए? सेंटर, ओरिजिन जो है वो सेंटर ऑफ मास पे आ जाए. तो सिस्टम कैसे बन जाएगी? तो इसको उठाया. कितना उठाया? इतना उठाया. कहां उठा के डाला? बिशुम. तो होगा क्या कि हियर इट विल हैविंग द एक्स एक्सिस, वी विल हैविंग द वाई एक्सिस. तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया और हमारा m1 यहां पे रह गया और हमारा m2 कहां पे रह गया? यहां पे रह गया. और ये कुछ ऐसा बन गया. सीधी सी बात, नो बकवास. सेंटर ऑफ मास. तो ये अपनी बन जाएगी फिगर नंबर 2. नाउ इफ वी आर प्लेसिंग सेम m1 and m2 in such a way that its center of mass lies on origin. कहां पे आके बैठ गया? ओरिजिन पे आके बैठ गया. समझ पे आया कि नहीं? अब होगा क्या कि मास से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है यहां से ये वाला, वो ये डायरेक्शन में r1 हो जाएगा. आया ना? और ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा. समझ में आया? क्लियर हुआ? क्योंकि ओरिजिन से हम मास का डिस्प्ले वो पोजीशन वेक्टर लेते हैं और सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पे आ गया. इसका मतलब कि आपका r वेक्टर दैट मींस योर x कॉम एंड y कॉम जो है वो ऑलरेडी नल वेक्टर बन गया, क्योंकि वो तो ओरिजिन पे है. उसके पास कहां पोजीशन है? तो वो क्या बन गया? नल वेक्टर हो गया. अब क्या होगा कि r1 एंड r2 बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहां पे हम लिखेंगे कि r1 इज हैविंग माइनस r2. तो बाय मैग्नीट्यूड ओनली अगर हम इसको लिखना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वेयर नल वेक्टर इज इक्वल टू
m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, लेकिन ये भाई तो जीरो के साथ जाके क्या बन जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. सो वी हैव m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर डिवाइड इक्वल टू जीरो, लेकिन इन अ वेक्टर फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म ओनली. सॉरी गलती हो गई यहां पे एक थोड़ी सी, हमें क्या डालना है, माइनस R2. क्या डालना है, माइनस R2 डायरेक्शन की वजह से, हियर ड्यू टू डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट है ना, दैट इज वाई. तो यहां पे क्या रहेगा, माइनस, यहां पे क्या रहेगा, माइनस. इन फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1r1 माइनस m2r2 is equal to 0. So m1r1 is equal to m2r2. So we have equation m1 divided by m2 is equal to r2 divided by r1. So sometimes that can be asked in examination कि अगर तुम्हारा सिस्टम पार्टिकल जो है कहां जाके बैठ गया, ओरिजिन पे जाके बैठ गया, तो व्हाट इज द सिचुएशन, m1r1 is equal to m2r2. डायरेक्टली क्या याद रखना है, ये वाला. क्लियर है टिल नाउ, एनी डाउट, शुड वी गो फर्दर. अब लग रहा है बुक से थोड़ा अलग आ रहा है, अब लग रहा है बुक से थोड़ा अलग आ रहा है, और सेकेंड थियरी में थोड़ा ज्यादा लगेगा. अब हम क्या कर रहे हैं कि दो मास तो ले लिए, m1 एंड m2. अब डिस्क्रीट का मतलब सबसे पहले मैंने बोलना भूल गया, डिस्क्रीट का मतलब कि दो डिफरेंट मासेस. डिस्क्रीट का मतलब क्या, डिफरेंट मासेस, क्योंकि आगे जाके हम है ना कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में भी डिराइव करेंगे. कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में डिराइव करेंगे तो इंटीग्रेशन से काम चलाएंगे. कहां से काम चलाएंगे, इंटीग्रेशन से. यहां पे एडिशन से चलेगा क्योंकि ईच मास इज डिफरेंट, और ईच मास इज डिफरेंट, देन वी हैव टू डू एडिशन. और यहां पे सपोज कर लो कि ये एक मास है जिसके बहुत छोटे पार्टिकल बना दिए, और ईच पार्टिकल का हमने क्या फाइंड किया, सेंटर ऑफ मास फाइंड किया, और बाद में अगर एडिशन करना है तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि दिस इज व्हाट, कंटिन्यूअस मास. तो कंटिन्यूअस मास के लिए इंटीग्रेशन होगा. तो डिस्क्रीट मास के अंदर सिग्मा आता है, एंड कंटिन्यूअस मास के अंदर क्या आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है वो छोटा बनाएगा, इंटीग्रेशन जो है वो क्या करेगा, एडिशन करके देगा ऑफ कंटिन्यूअस थिंग्स. क्लियर, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दो ऐसी चीज है, अगर बड़ा है उसको बहुत छोटा करना है, यूज डिफरेंशिएशन, और बहुत छोटा है और कंटिन्यूअस है तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन. आप लोग जानते हैं शायद. Now, if m1 and m2 are two masses and center of mass is at r1 from m1 and r2 from m2, then कैसे कैसी कंडीशन हो सकती है. ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं क्या लूंगा, केस नंबर 1. इसमें दोनों के मास इक्वल होते हैं? नहीं, डिफरेंट मासेस है. m1 एंड m2 बोथ आर डिफरेंट मासेस. ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि ये अपना रहा मास m1 और ये रहा अपना मास m2. अब दोनों को ज्वाइन करो, ऐसी लाइन के ऊपर सेंटर ऑफ मास आएगा. अब सपोज किया है मैंने कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर, दोनों के बीच में कहीं पे होगा ना. अब m1 से इसका डिस्टेंस है r1, समझ में आ रहा है, और m2 से इसका डिस्टेंस कितना है r2. वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द ओरिजिन राइट हियर. ओरिजिन हमने डिसाइड किया नहीं किया,
और केस यहीं से बन रहा है कि केस नंबर 1, इफ m1 इज एट ओरिजिन, अगर m1 ओरिजिन पे है, concentrate here. If you need more space, you can push the benches behind. Okay. So this is our y-axis, or this is our x-axis. तो it is become the origin. तो यहां पे सेंटर ऑफ मास कौन सी डिस्टेंस पे आ गया? r1 डिस्टेंस पे आ गया, दिखा रहा है, हाँ या ना? सो r कॉम आपका जो होगा that is at r1 distance. Are you getting my point or not? r कॉम, ठीक है. बाद में मास m1 इज एट ओरिजिन पे ना, मास m2 इज एट r1 प्लस r2. अब मैग्नीट्यूड में लो सिर्फ तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ कंक्लूजन चाहिए, डायरेक्शन में लेके कंक्लूजन सेम रहने वाला है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो ये दोनों का एडिशन टोटल दोनों के बीच में कितना है? सपोज कर लो कि कितना है? r है. कितना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू स्मॉल r. क्लियर? अब इक्वेशन डालिए कि r कम इज इक्वल टू m1 इट्स प्लेस, m1 इंटू इट्स प्लेस फ्रॉम ओरिजिन कितना है? एट 0, राइट, प्लस m2 इंटू इट्स प्लेस. अब m2 ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. समझ में आया कि नहीं? अब ये सिर्फ x एक्सिस के ऊपर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x कॉम. r कॉम लिखने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज वाई अब x कॉम अपना जो है, r कॉम अपना क्या होगा? r1 0. तो इससे x कॉम आपको क्या मिलेगा? r1 मिलेगा ना, y एक्सिस के ऊपर तो कुछ है नहीं. सो दैट इज वाई r1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2r. समझ में आया कि नहीं? इसको ऊपर नहीं लेना है तो भी चलेगा, क्योंकि r1 चाहिए m2r अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, क्या हो जाएगा? m2r अपॉन m1 प्लस m2. ये आपको क्या मिलेगा? r1 की पोजीशन मिलेगी. क्या मिलेगा? r1 की पोजीशन मिलेगी. इज दैट क्लियर? वैसे ही हम इसको कहां पे ले सकते हैं? y एक्सिस के ऊपर भी ले सकते हैं. y एक्सिस के ऊपर लेंगे तो ये पोर्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, इतना पोर्शन चेंज होगा. तो केस नंबर 2, इफ m1 की जगह m2 इज एट ओरिजिन, अगर m2 ओरिजिन के ऊपर आ गया, दिस इज m1, दिस इज व्हाट? m2. तो ये हो जाएगा x एक्सिस. सेंटर ऑफ मास जो है ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है, दोनों का डिस्टेंस r है. ठीक है, अगर m2 ओरिजिन पे आता है तो m2 इज एट 0, m1 इज एट, m1 कौन से डिस्टेंस पे होगा? एट r डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, राइट, है ना? एंड सेंटर ऑफ मास इज एट, कौन से डिस्टेंस पे आ जाएगा? r2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से कौन से डिस्टेंस पे? r2 डिस्टेंस पे आ जाएगा. अब इक्वेशन लगाओ, x कॉम दैट इज इक्वल टू m1, m1 कौन से डिस्टेंस पे है? r, प्लस m2 कौन से डिस्टेंस पे है? 0, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब x कॉम की वैल्यू कितनी है? r2 है ना. y कॉम तो अपने पास है ही नहीं, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर है. सो दैट इज वाई x कॉम दैट इज r2. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? m1r m1 प्लस m2. इज दैट क्लियर? दीज आर टू डिफरेंट कंडीशंस with respect to origin while any mass
इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। दो मास में से कोई एक मास कहां पर है? ओरिजिन के ऊपर है। चलो क्लियर है इतना? एनी डाउट रिगार्डिंग टू दैट? नो। नाउ नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। कैविटी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ निकाल लिया तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास निकल गया तो मास बदल गया। बदले हुए मास का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अलग होगा। अगर आपको मास नहीं दिया गया और सिर्फ एरिया दिया गया है, अगर आपको मास नहीं दिया गया और सिर्फ एरिया दिया गया है तो क्या करोगे? तो उसका भी अलग होगा। ठीक है, तो उसकी दो थियरी। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी। सपोज कर लो कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, जिसके अंदर पहला वाला पोर्शन क्या है? सर्कल है। पहला क्या है? सर्कल है। सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर व्हाट? वाई एक्सिस। दूसरी बॉडी हम कौन सी ले रहे हैं? इसके साथ ही ले रहे हैं। अब ये दोनों बॉडी जो है, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा और इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? समझ में आ रहा है ना? तो ये अपना हो गया m1, ये अपना हो गया m2। m1 इज एट x1 डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना? एंड m2 इज एट x2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहां से? ओरिजिन से। अब यहां पे हम सपोज ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दोज आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ थिकनेस। सो दीज आर बॉडीज वेयर द सरफेस एरिया इज एग्जिस्टेड ओनली। तो हियर m1 एंड m2 आर negligible thick plates, बराबर ना? तो m1 and m2 दो both are what? Plates is having a1 and a2 are area। दूसरी एक कंडीशन यहां पे हम डालेंगे, m1 and m2 both are मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। कैसे मटेरियल के बने हुए हैं? सेम मटेरियल के बने हुए हैं। दोनों का एरिया क्या है? R1, A1 एंड A2। ओके, एंड थर्ड थिंग आर प्लेस्ड एट x1 एंड x2 डिस्टेंस। अब मास पर यूनिट एरिया दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। रीजन क्या? थिकनेस नहीं है अपने पास। क्या नहीं है? थिकनेस नहीं है। तो किसी भी प्लेट के अंदर से स्क्वायर पर स्क्वायर एरिया उठा लो तो उसका मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। तो हियर मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू डिफाइन एज सिग्मा फॉर सिंप्लिसिटी, डिफाइन एज सिग्मा। मास पर एरिया दैट मीन्स m1 डिवाइडेड बाय इट्स एरिया a1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय इट्स एरिया a2। सो वी विल हैव m1 is equal to sigma a1 and m2 is equal to what? Sigma a2। These are the two equations। अब हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इसका कहीं पे भी आए, हम उसको कौन सा एक्सकॉम बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? एक्सकॉम। तो x सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द फाइनल थिंग। ये तो हम जानते हैं। अब m1 m2 सबकी वैल्यू डालो, सिग्मा a1 x1 प्लस सिग्मा a2 x2 डिवाइडेड बाय m1 सिग्मा a1
प्लस सिग्मा A2। अब सिग्मा हर जगह से कॉमन निकल के आएगा और कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया A1x1 प्लस A2x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। So this is XCOM while we have area, while both the bodies are made up of same material, this is the condition। और ज्यादातर सेंटर ऑफ मास उसी का फाइंड किया जाता है जहां पे आपकी मटेरियल जो होती है वो सेम रहे, मटेरियल जो आपका होता है वो सेम रहे, वहां पे सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाता है, पहली चीज। ठीक है, हाँ जी। डिफरेंट कहू तो छू, मैं बोल तो रहा हूं कि अगर डिफरेंट मटेरियल है तो यू हैव टू गो थ्रू ओनली बाय मास, हैव टू गो थ्रू दी मास, और वहां पे मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम से आपको एग्जांपल करना पड़ेगा। या तो वही बोल रहा हूं ना, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम हुआ ना, तो वही इक्वेशन की बात कर रहा हूं। गिवन मटेरियल, इट्स डेंसिटी एंड इट्स वॉल्यूम, या फिर आपको हर एक का मास डिफाइन करना पड़ेगा, इसका मास ये है, इसका मास ये है। अगर मटेरियल सेम नहीं है तो ये इक्वेशन यूज नहीं होगा, यू हैव टू गो थ्रू द मास इक्वेशन। कौन सी वाली इक्वेशन से जाना पड़ेगा? मास वाली इक्वेशन से जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नाउ इसीलिए तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सिग्मा कट हो गया, वरना सिग्मा कट नहीं होता क्योंकि दोनों का अलग आता, दोनों का सेम है, इसका मतलब मटेरियल हमने क्या लिया हुआ है, सेम लिया हुआ है, वरना सिग्मा 1 डिफरेंट होता, सिग्मा 2 डिफरेंट होता तो यहां पे सब कुछ होता, सिग्मा 1 भी होता, सिग्मा 2 भी होता। वैसे करना है तो भी चलेगा, रो इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम से करना है तो भी चलेगा, उससे तो अच्छा है ना कि मास से ही करो। अगर तुम रो फाइंड कर रहे हो उससे तो अच्छा मास से करो, मास से ही करो। ठीक है, नाउ ये डिफरेंट टू बॉडीज हो गई। सो इन जनरल आर कॉम जो होगा, जिसको हम एक्स कॉम या वाई कॉम बोलते हैं, वो क्या हो सकता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड वाई कॉम क्या हो सकता है, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली एरिया के थ्रू जाते हैं तो मास इज रिप्लेस्ड बाय इट्स एरिया, सो दैट इज वाई a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ओके, सपोज हमने कोई एक के अंदर से क्या कर लिया, कोई मास निकाल लिया, तो इट्स न्यू थियरी, इट इज हैविंग न्यू थियरी। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, मतलब जिसमें से कुछ हमने निकाल लिया, सपोज m1 is mass of initial body with r1 vector and a1 cross sectional area. If m2 mass is reduced from that which were having r2 vector and a2 cross sectional area, so remaining mass that is equal to m is equal to m1 minus m। remaining mass is what, जिसको हम कैपिटल M ले लेते हैं, चलिए क्या ले लेते हैं, m1 माइनस m2, सॉरी पहले वाले m1 में से m2 निकाल दिया, सो रिमेनिंग एरिया हमारा क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 निकाल दिया। ठीक है,
जो निकल रहा है वो मास और उसका डिस्टेंस निकालना है. सो आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू बिकमिंग एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास. अगर मास के हिसाब से चलते हैं तो हमारे पास m1 r1 था, जिसमें से m1 x1 था, जिसमें से हमने रिड्यूस किया m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. और अगर y को हम चाहिए तो m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. अगर एरिया के हिसाब से चलते हैं, किसके हिसाब से चलता है? एरिया के हिसाब से चलते हैं, तो इट विल बिकम a1 x1 माइनस a2 x2. अब यहां पे देखो, यहां पे ये चीज देखने की जरूरत है कि हमने इनिशियल मास को m1 लिया है, यानी कि टोटल मास m1 है. समझ में आ रहा है? टोटल मास क्या है? m1 है, और जो बाकी बचा है वो मास कैपिटल M है. तो ये गलती नहीं होनी चाहिए. यहां पे हम कैपिटल M कहां पे लेते थे? m1 प्लस m2, मतलब दो एक्सक्रीट मासेस का एडिशन लेते थे. यहां पे कैपिटल M क्या है? दो डिफरेंट मासेस का सब्सट्रैक्शन है. मतलब कि सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक ऐसी डिस्क है और ये डिस्क के अंदर से हमने इतना निकाल दिया है, तो सिर्फ इतना चाहिए हमको. क्या चाहिए? सिर्फ इतना ही चाहिए. तो होल का m1 है, जिसके अंदर से इतना छोटा वाला पोर्शन m2 मास का हमने रिड्यूस कर दिया है. तो ये जो बचा वो m1 में से m2 जितना है. ये जो बचा वो क्या है? m1 में से m2 चला गया उतना है. समझ में आया? तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब m2 निकल गया तो इट इज शिफ्टिंग टॉवर्ड्स राइट ओरिया, तो यहां कहीं पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास. समझ में आ रहा है? तो दिस इज ओल्ड सेंटर ऑफ मास. तो ये आपका क्या हो जाएगा? न्यू सेंटर ऑफ मास. अब न्यू सेंटर ऑफ मास कहां से फाइंड करना है? फ्रॉम हियर. इज दैट क्लियर? तो a1 माइनस a2 एंड a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2. So here are the four theories for the excrete masses. Okay, अलग अलग मासेस के लिए हो सकती है. और यहां पे तो हमने सिस्टम ऑफ मास भी देखी. सिस्टम ऑफ मास के रिगार्डिंग हमने ये देखा. अब कंटिन्यूअस मास के लिए एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं. कंटिन्यूअस मास के लिए वो इंटीग्रेशन वाला डिराइव करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं एक बार. चलो, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा कुछ ज्यादा ही साइलेंट हो गया नहीं? Oh, troubling. सपोज कंटिन्यूअस मास के बारे में सब जानते हैं कि इफ वी हैव सेंटर ऑफ मास ढूंढना है हमें ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी और कंटिन्यूअस मास. सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दिस इज अवर कंटिन्यूअस बॉडी. अब कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए मैंने उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए. जहां पे बहुत ही छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया जिसका मास कितना है हमारे पास? स्मॉल डेल्टा m के जितना है. ठीक है, और जिसका वेक्टर क्या है? ri वेक्टर है. कौन सा वेक्टर है? ri वेक्टर, या फिर r वेक्टर ले लीजिए. ठीक है. सो हियर total mass capital M is divided into small masses of delta mi, where I is equal to 1 2 3 number of
पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, उतने नंबर हमने निकाल लिए. वेयर each has Ri vector its position as its position. ठीक है, अब हमें स्मॉल मासेस मिल गए हैं, स्मॉल मासेस हमें मिल गए हैं, लेकिन दिस इज नॉट द एक्सक्रीट मासेस, these are the continuous masses, these are the masses due to which the continuous body is formed. तो हमें अगर लेना है तो हमें जाना पड़ेगा विथ इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन कैसे आता है कि हियर ऑल द मासेस आर डेल्टा एम आई टेंड्स टू 0. बहुत छोटे लिए हैं ना हमने. सो टोटल मास जो होगा वहां पे लिमिट लगेगी डेल्टा एम टेंड्स टू 0, लिमिट लगेगी डेल्टा एम टेंड्स टू 0. जो आपका एडिशन है एम आई का, समझ में आया ना. अब लिमिट लगेगी तो एडिशन बनेगा इंटीग्रेशन, लिमिट लगेगी तो एडिशन बनेगा इंटीग्रेशन, और लिमिट लगेगी तो डेल्टा एम बनेगा dm. So total mass is integration of m. Getting my point or not? समझ में आ गया. अब r सेंटर ऑफ मास हमारा क्या था, r सेंटर ऑफ मास हमारा क्या था कि m1 x1 प्लस m2 सॉरी x सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, बाद में दोनों इकट्ठा बना देंगे. m2 x2, अब n पार्टिकल लिया है तो mn xn हो जाएगा, सॉरी यहां पे छोटे पार्टिकल्स रखना है. सो डेल्टा m1 एट x1, डेल्टा m2 एट x2 अप टू डेल्टा mn एट xn डिवाइडेड बाय टोटल मास. टोटल मास के लिए अभी इंटीग्रेशन यूज करना है, तो उसको लिखने की जरूरत, m1 m2 m3 4 लिखने की जरूरत, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन यूज करके टोटल मास वहां पे हम डाल देंगे. दिस इज द डेरिवेशन एक्चुअली, बाद में कहीं पे यूज नहीं होने वाला है डेरिवेशन एक्चुअली. तो y को हम, अगर हम ये x कॉम को लिखें तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा ऑफ डेल्टा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय m, बट लिमिट डेल्टा एम आई टेंड्स टू 0. सो x कॉम दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एम आई टेंड्स टू 0 सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय m. अब लिमिट सिग्मा को लगेगी तो इंटीग्रेशन, और डेल्टा एम आई को लगेगी तो dm, और x तो एज इट इज है ही हमारे पास. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है ना. सिमिलरली y com that is equal to integration of y dm divided by m, and if that is 3-dimensional then z com is equal to integration of z dm by m. Clear? These are the equations of continuous body. Clear? समझ में आ गया? Any doubt till now?